Welcome, guys. Today I will teach you about HIV in pregnancy. So, let's start. Firstly, I will deal with the introduction. HIV in pregnancy is defined as the woman with HIV may transmit the infection to their child during pregnancy, childbirth, and while breastfeeding. However, the risk of mother to child transmission of HIV may be reduced by treatment of the HIV infection with antiretroviral therapy. ART full form is antiretroviral therapy और एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी जहाँ दिया जाता है उस सेंटर का नाम है ART सेंटर. अब देखेंगे HIV इन प्रेगनेंसी. ये क्या होता है? एक प्रेग्नेंट वुमेन जो अफेक्टेड है HIV वायरस से, जो सफ़र कर रही है HIV इन्फेक्शन से, एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये जो HIV इन्फेक्शन होता है वो मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिट होता है, एंड इसका जो रिस्क है उसको बाय द ट्रीटमेंट रिड्यूस किया जा सकता है. और ये जो ट्रीटमेंट है, देयर नेम इज़ एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी. नाउ second is definition. There are two definition. First is HIV in pregnancy is the presence of HIV in a woman while she is pregnant. It may transmit the infection to their child during pregnancy, childbirth, and while breastfeeding. According to नीमा भास्कर. अकॉर्डिंग टू नीमा भास्कर क्या बोला जा रहा है? HIV क्या होता है? एक प्रेग्नेंट वुमेन जिसमें HIV का जो वायरस है वो प्रेजेंट है, एंड ये जो है ट्रांसमिट होता है मदर टू चाइल्ड during pregnancy and during labor process and postnatal. It means just because of breastfeeding. Now second definition is pregnancy in women living with HIV is complicated not only by HIV infection itself but also by the medical and psychosocial comorbidities associated with HIV, according to DC Datta. DC दत्ता के अकॉर्डिंग है कि जो HIV वायरस से जो वुमेन अफेक्टेड है, प्रेग्नेंट वुमेन जो अफेक्टेड है, वो सिर्फ HIV वायरस के इन्फेक्शन से ही नहीं, HIV वायरस की वजह से बहुत सारे मेडिकल एंड साइकोसोशल प्रॉब्लम्स जो रहते हैं उन सारी चीज़ों से वो वुमेन जो है वो सफ़र करती है. नाउ मोड्स ऑफ HIV ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड. मोड्स, इट मीन्स वे by which HIV virus has transmitted from mother to child. There are three modes. First is antenatal, second is intranatal, and third is postnatal. Antenatal it means during pregnancy, intranatal it means during labor process or delivery, and postnatal it means after delivery. So first antenatal, in utero by transplacental passage. जितने भी न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, जितने भी चीज़ रहते हैं उन सब का सप्लाई मदर टू चाइल्ड प्लेसेंटा के थ्रू होता है. HIV वायरस का जो इन्फेक्शन है वो भी प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसमिट होगा एंटीनेटल पीरियड में. ना सेकंड इज इंट्रानेटल. एक्सपोजर टू मैटरनल ब्लड एंड वेजाइनल सेक्रेशन ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी. ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस मैटरनल ब्लड स्क्रीट आउट होते हैं एंड वेजाइनल सेक्रेशन होता है विच इज़ लीड द ट्रांसमिशन ऑफ HIV फ्रॉम मदर टू चाइल्ड. दैन पोस्टनेटल, पोस्टपार्टम थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग. पोस्टनेटल इट मीन्स आफ्टर डिलीवरी. आफ्टर डिलीवरी वुमेन क्या करती है? बेबी को ब्रेस्ट फीड देती है. बाय द ब्रेस्ट फीडिंग HIV ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड. Now symptoms. There has many symptoms. First is fever. During this case the mother body temperature has to increase after 98.6 degree Fahrenheit. Now second is enlarged lymph node. तो जो lymph node रहते हैं, lymph जो रहता है वो enlarged हो जाता है just because of infection. Now third is fatigue. HIV जो वायरस होता है वो इम्यून को अफेक्ट करता है एंड इम्यून बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है जिसके वजह से जो वुमेन रहती है वो फटीग फील करती है. नाउ एब्डोमिनल क्रैम्पिंग और एब्डोमिनल पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. एब्डोमिनल पेन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एब्डोमिनल क्रैम्पिंग. एब्डोमिनल क्रैम्पिंग भी होता है वुमेन को. नाउ स्किन रैश,
the woman who is suffering from HIV virus, so red rashes appear on their skin like that we can see on these images. Now diagnosis it means ये एक टूल होता है जिसके थ्रू हम किसी भी डिजीज़ को डायग्नोज करते हैं. सो देयर हैज़ 4 diagnosis or tools. First is ELISA, full form is enzyme linked immunosorbent assay. Then second is PCR, full form is polymerase chain reaction. So neonatal HIV DNA or RNA polymerase chain reaction test. Third is maternal HIV first, HIV second antibody test. Fourth is HIV first nucleic acid test, NAT, full form is nucleic acid test. One by one देखेंगे. So first is ELISA, enzyme linked immunosorbent assay. It is a commonly used laboratory test to detect antibodies in the blood. An antibody is a protein produced by the body immune system when it detects harmful substances called antigen. So ELISA क्या होता है, इसमें जो एंटीबॉडीज़ रहते हैं बॉडी में उसको डिटेक्ट किया जाता है कि वो ब्लड में प्रेजेंट है कि नहीं. जो एंटीबॉडी रहता है वो क्या करता है, इम्यून सिस्टम के थ्रू प्रोटीन प्रोड्यूस करने का काम करता है. एंड जब एक हार्मफुल सब्सटेंस के रूप में पाया जाता है, सो दैट इज़ कॉल्ड एंटीजन. नाउ PCR, polymerase chain reaction. The test finds either the RNA of the HIV virus or the HIV DNA in white blood cells infected with the virus. सो इसमें ये बोला जा रहा है जो HIV वायरस का RNA एंड DNA को पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन टेस्ट के थ्रू डिटेक्ट किया जाता है. नाउ HIV फर्स्ट, HIV सेकेंड एंटीबॉडी टेस्ट. It is recommended for all pregnant women in the first trimester and patient in a high incidence area or with risk factor for HIV acquisition. जितने भी प्रेगनेंट वुमेन हैं उन सबको HIV फर्स्ट, HIV सेकेंड एंटीबॉडी टेस्ट के लिए बोला जाता है. एंड जो हाईली रिस्क एरियाज़ होते हैं वहाँ जो वुमेन प्रेग्नेंट है उन लोग को मोस्टली बोला जाता है, ताकि जिस टाइम को उनको नीड है केयर का, उनको एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी के थ्रू ये जो ट्रांसमिशन है मदर टू चाइल्ड उसको रोका जा सके. नाउ NAT, न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग. HIV infection in infants is diagnosed by detecting the presence of viral nucleic. Viral nucleic, it means viral RNA and viral DNA. So न्यूक्लिक एसिड टेस्ट के थ्रू जो इन्फेंट में वायरल RNA और वायरल DNA अगर प्रेजेंट है तो उसको डिटेक्ट करके हम HIV वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं इस टेस्ट के थ्रू. ना देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ HIV पॉजिटिव प्रेग्नेंट वुमेन. सो फर्स्ट इज़ एंटीनेटल केयर. मैंने पहले ही बताया है एंटीनेटल केयर इट मीन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो केयर प्रोवाइड करेंगे वुमेन को वो सारे केयर्स आते हैं एंटीनेटल केयर में. सो फर्स्ट इज़ the care of the HIV positive woman during pregnancy should include ongoing counseling and support as an integral part of the management. So firstly इसमें बोला जा रहा है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन रहेगी उसको काउंसलिंग प्रोवाइड करना है एंड सपोर्ट प्रोवाइड करना है जस्ट बिकॉज वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है. सो इसलिए उसको काउंसलिंग एंड सपोर्ट प्रोवाइड करना है. दूसरा, एडवाइस ऑन द पॉसिबल रिस्क फॉर अनप्रोटेक्टेड कॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुड बी प्रोवाइडेड. सो जो वुमेन प्रेग्नेंट वुमेन रहेगी उसको अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करने के लिए बोलना है. नाउ सेकंड इज़ मैनेजमेंट में सेकंड है ऑब्स्टेट्रिकल मैनेजमेंट. इन्वेसिव डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स सच एज कोरियोनिक वेलस सैम्पलिंग एमनियोसेंटेसिस शुड बी अवॉइडेड वेयर पॉसिबल ड्यू टू अ पॉसिबल रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द फीटस. सो इसमें जितने भी इन्वेसिव प्रोसीजर हैं उन सबको अवॉइड करना है जस्ट बिकॉज अगर इन्वेसिव प्रोसीजर करेंगे तो चाइल्ड को HIV ट्रांसमिट होने का रिस्क बढ़ जाएगा, इसलिए जो इन्वेसिव प्रोसीजर है उनको अवॉइड करना है ना. सेकंड इज कंसिडरेशन कैन बी गिवन टू द असेसमेंट ऑफ फीटल ग्रोथ वेदर बाय रेगुलर फंडल हाइट मेजरमेंट और बाय सीरियल अल्ट्रासाउंड असेसमेंट. सो जो नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है उनको कंसिडर करना है लाइक अल्ट्रासाउंड एंड फंडल हाइट चेक करना, असेसमेंट फीटल का जो ग्रोथ है उसको असेस करना, इस सबको कंसिडर करना है. ना मेडिकल ट्रीटमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. अब कौन कौन से मेडिकल ट्रीटमेंट है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक मदर को प्रोवाइड करना है. तो फर्स्ट इज़ मेबेंडाजोल शुड बी गिवन एट फर्स्ट विजिट इन एरिया ऑफ हाई हुकवॉर्म प्रिवलेंस. सो अगर हुकवॉर्म इन्फेक्शन से मदर सफ़र कर रही है
तो उसको मेबेंडाजोल देना है ताकि जो हुकवर्म इन्फेक्शन है उसे हुकवर्म इन्फेक्शन से जो वो सफ़र कर रही है वो ट्रीट हो सके, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है वो मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को बढ़ावा देता है ना। सेकंड इज़ मलेरिया इन प्रेगनेंसी कॉज हाई मैटरनल एंड इन्फेंट मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी एंड मे बी एसोसिएटेड विथ इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV, in which preferably one dose anti-malarial drug should be made available to all primary gravid. प्राइमरी ग्रेविड इट मीन्स ऐसी वुमेन जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, फर्स्ट टाइम बेबी कंसीव कर रही है। सो अगर HIV वायरस से अफेक्टेड है वो और साथ उसको मलेरिया का सिम्टम शो हो रहा है तो उसको एंटी मलेरियल 1 डोज ड्रग देना है, ताकि क्योंकि जो मलेरिया होता है वो ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करता है, इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन को इंक्रीज़ करता है। सो एंटी मलेरियल ड्रग उसको देना है ताकि ये जो ट्रांसमिशन है उसको प्रिवेंट किया जा सके। Now, antiretroviral therapy. It is the most important part of this topic, antiretroviral therapy. So, the use of antiretroviral drug in pregnancy should be considered for 2 indications: the health of the mother and prevention of transmission. Pregnancy should not be contraindication for antiretroviral therapy in mother if indicated. सो एंटी रेट्रोवायरल जो थेरेपी है वो 2 कंडीशंस में देना है मदर को। एक मदर के वेल बीइंग को फोकस करते हुए और दूसरा जो ट्रांसमिशन है उसको प्रिवेंट करने के लिए। और ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर नीड है किसी प्रेग्नेंट लेडी को सो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दिया जा सकता है। नाउ current recommendation for adult antiretroviral therapy are that monotherapy with ZDV is suboptimal treatment and that 2 antiretroviral with the possible addition of a protease inhibitor is preferable. जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है वो एक मोनोथेरेपी होता है। इसमें JDV इट मीन्स एजिडोथियोमाइड, ये एक मेडिसिन होता है जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में यूज़ किया जाता है। तो ये क्या करता है, जो ट्रांसमिशन है इन्फेक्शन का उसको इनहिबिट करता है। नाउ एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन. So, HIV positive women should have a full physical examination at the first visit. Particular attention should be paid to any sign of HIV related infection. So, इसमें ये बोला जा रहा है जो HIV पॉजिटिव वुमेन है उनको पर्टिकुलर विजिट के लिए बोलना चाहिए, रूटीनली विजिट के लिए बोलना है एंड उनको पर्टिकुलरली अटेंशन देना है, उनके में फोकस करना है, प्रॉपर केयर उनको प्रोवाइड करना है। Now, clinical diagnosis and treatment of vaginal and cervical inflammation, abnormal discharge or STD should be priority. So, clinical diagnose करना है, उसका all routine टेस्ट करना है, लाइक उसको STD तो नहीं है, STD इट मीन सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ तो नहीं है, या फिर उसका जो वेजाइनल एंड सर्वाइकल एरिया है वहाँ इन्फ्लामेशन तो नहीं है, या फिर कोई भी एबनॉर्मल डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है वेजाइना के थ्रू। सो ये सब चेक करना है। Now, the pregnant woman should be monitored for any sign of HIV related opportunistic infection and for any other intercurrent infections such as urinary or respiratory infection. So, इसमें ये बोला जा रहा है जो प्रेग्नेंट वुमेन रहेगी जो HIV से अफेक्टेड है उसको मॉनिटर करना है ताकि जितने भी सिम्टम्स हैं वो प्रेजेंट हैं कि नहीं, उसको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी तो नहीं है, उसको प्रॉपर ब्रीदिंग तो आ रहा है, ये सब मॉनिटर करना है। एंड साथ ही साथ उसका जो इन्फेक्शन लेवल है वो सब भी मॉनिटर करना है, लाइक उसको यूरिनरी और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं। सो सारी चीज़ों के लिए उसको मॉनिटर करना है। ना एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन में है, मैटरनल वेट शुड बी मॉनिटर्ड एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन एडवाइज्ड वेयर नेसेसरी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मैटरनल वेट होता है वो इंक्रीज़ होता है, इट मीन्स जो प्रेग्नेंट वुमेन जो रहती है वो वेट गेन करती है, बट अगर वो HIV से सफ़र कर रही है तो उसका वेट लॉस होगा। सो उसको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के लिए एडवाइस करना है। देन द ओरोफेरिंग्स शुड बी एग्जामिन्ड एज एट ईच विजिट फॉर द प्रेजेंस ऑफ थ्रस। जो ओरोफेरिंग्स रहता है एक प्रेग्नेंट वुमेन का उसको भी एग्जामिन करना है, क्योंकि इन्फेक्शन के वजह से वहाँ पे थ्रश होने लग जाते हैं, छाले होने लग जाते हैं, जिसके वजह से उसका ओरोफेरिंग्स वाला जो पार्ट है वो भी एग्जामिन करना है। नो सिफिलिस टेस्टिंग शुड बी अंडरटेकन एंड रिपीट टेस्टिंग इन लेट प्रेगनेंसी में बी अवेलेबल। सिफिलिस टेस्टिंग के लिए बोलना है, अगर उसका टेस्ट नहीं हुआ है तो उसको रिपीट टेस्टिंग के लिए भी बोलना है।
Now, a hemoglobin estimation is mandatory and a complete blood count should be performed and T cell subset investigations undertaken where possible. उसका हीमोग्लोबिन HB लेवल जो है वो टेस्ट करना है, ऑल रूटीनली ब्लड टेस्ट जो होता है वो सब टेस्ट करना है, और अगर पॉसिबल हो तो उसका टी सेल एग्जामिनेशन भी करना है. नाउ anemia is more common in HIV infected women and repeated hemoglobin test may be helpful. अनीमिया जो है बहुत ही कॉमन है. HIV प्रेग्नेंट अगर कोई वुमेन है तो उसको अनीमिया होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है. सो उसके HB के लिए HB बार बार चेक करने के लिए बोलना है, HB लेवल बार बार चेक करना है. नाउ केयर ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी. सो फर्स्ट इज care during labor for HIV positive women should follow routine practice in most respects. सो ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस एक अगर कोई वुमेन पॉजिटिव है सो उसको रूटीनली प्रैक्टिस के लिए तो बोलना है, एंड एक रेस्पेक्टफुली उसका जो डिलीवरी प्रोसेस है वो करना है. नाउ prolonged rupture of membrane should be avoided as mother to child transmission is increased where membrane are ruptured for more than 4 hours. Artificial rupture of membrane should not be undertaken if progress of labor is adequate. सो जो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन अगर हो रहा है तो उसको अवॉइड करना है, क्योंकि ये जो अगर मेम्ब्रेन रप्चर होता है तो वो मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को बढ़ावा देता है. अगर जो मेम्ब्रेन रप्चर है वो 4 आवर्स से ज़्यादा हो तो वहाँ पे आर्टिफिशियल रप्चर अगर करते हैं तो वो जब डिलीवरी का टाइम आता है उस टाइम पे करना है. इट मीन्स फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स रहेगा उस टाइम पे आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करना है. नो एपिजोटोमी शुड नॉट बी परफॉर्म्ड रूटीनली बट रिजर्व्ड फॉर दस केसेस विद इन एन ऑब्स्टेट्रिकल इंडिकेशन. एपिजोटोमी भी परफॉर्म नहीं करना है जस्ट बिकॉज ये ब्लीडिंग कॉज करेगा, जो क्या करता है ट्रांसमिशन को बढ़ावा देता है. सो बहुत ज़्यादा नीड है उस टाइम पे एपिजोटोमी देना है, अदरवाइज नहीं करना है. Then care during labor and delivery. If an assisted delivery is required, forceps may be preferable to vacuum extractor given the risk of micro laceration of the scalp from the vacuum cup. अगर असिस्टेड डिलीवरी का रिक्वायरमेंट है सो वहाँ पे फोर्सेड डिलीवरी को प्रमोट करना है, फोर्सेड डिलीवरी प्रेफर करना है, जस्ट बिकॉज वैक्यूम एक्सट्रैक्टर से क्या होता है जो वैक्यूम कप होता है उसके वजह से जो बेबी का स्कल है उसमें लैशरेशन फॉर्म हो जाता है. सो इसलिए जो फोर्सेड डिलीवरी को प्रेफर करना है, वैक्यूम एक्सट्रैक्टर को अवॉइड करना है. नाउ देयर इज़ इंक्रीजिंग एविडेंस दैट elective cesarean section may help prevent transmission of HIV to the baby. The operation carries risk of maternal complications and is associated with higher post-operative morbidity in HIV positive women. Morbidity, it means disease rate, right? So जो सिजेरियन सेक्शन से जो डिलीवरी होता है उसको प्रमोट करना है जस्ट बिकॉज ये ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करता है, बट ये रिस्क होता है मदर के लिए. मदर में अदर डिजीज़ कॉज करने का चांस होता है, फिर मदर डेथ करने का भी चांस होता है. नाउ प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक शुड बी गिवन फॉर बोथ इलेक्टिव एंड इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन. इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन अगर कर रहे हैं सो उस टाइम पे प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक यूज़ करना है विच इज़ हेल्पफुल फॉर prevent the infection. Thank you for watching this video. So please like, comment, share and subscribe my channel.